الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صدق الله ورسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. گرامی قدر سامعین، معزز بزرگ و دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جمعۃ المبارک کی اس نشست میں جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے قربانی کی ترغیب، فضیلت اور اہمیت۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب لم یزل مجھے شرح صدر کے ساتھ اس عنوان پہ معروضات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی شریعت اسلامی کی عبادات میں سے ایک محترم بالشان عبادت ہے۔ اللہ جل شانہ نے انسانوں پر 3 قسم کی عبادات فرض کی ہیں۔ پہلی قسم کی عبادت کو بدنی عبادت کہتے ہیں، دوسری قسم کی عبادت کو مالی عبادت کہتے ہیں، اور تیسری قسم کی عبادت کو بدنی اور مالی دونوں سے مرکب عبادت کہتے ہیں۔
نماز اللہ نے ہم پر فرض کی ہے، یہ بدنی عبادت ہے۔ اس میں ہم قیام کرتے ہیں، وہ بدن سے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، وہ بدن سے کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، وہ بدن سے کرتے ہیں، قاعدہ کرتے ہیں، وہ اپنے وجود اور بدن سے کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، وہ بھی بدن سے کرتے ہیں۔ گویا کہ نماز عبادت ہے لیکن بدنی عبادت ہے۔ روزہ بھی عبادت ہے، یہ بھی بدنی عبادت ہے، کیونکہ روزے میں ہم 3 چیزوں سے اپنے بدن کو روکتے ہیں، کھانے سے، پینے سے اور جنسی خواہشات سے۔ تو روزہ بھی بدنی عبادت ہے۔ مالی عبادت میں سے ہمارے پاس زکوٰۃ ہے اور عشر ہے، یہ ہم مال سے نکالتے ہیں، یہ مالی عبادت ہے۔ حج وہ عبادت ہے جو بدنی اور مالی دونوں سے مرکب ہے۔ آپ کا وجود حج کرتا ہے، آپ گھر بار چھوڑتے ہو، آپ حرم شریف پہنچتے ہو، پھر طواف کرتے ہو، صفا مروہ میں سعی کرتے ہو، حج کے سارے مناسک ادا کرتے ہو، یہ آپ اپنے بدن سے یہ مناسک ادا کرتے ہیں۔ تو حج بدنی عبادت بھی ہے، لیکن صرف بدنی نہیں ہے، اس میں پیسہ بھی لگتا ہے۔ آپ نے یہاں سے ٹکٹ بھی کرنا ہوگا، کھانے پینے کے اخراجات کے پیسے بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے، گھر بار والوں کے لیے خرچے کے لیے آپ کے پاس اضافی رقم بھی ہونی چاہیے۔ گویا کہ حج عبادت ہے، لیکن یہ 2 طرح کی عبادتوں سے مرکب ہے، یہ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو قربانی ہے، یہ بھی بدنی اور مالی 2 طرح کی عبادتوں سے مرکب عبادت ہے۔ اس میں مال بھی لگتا ہے، آپ رقم لگاتے ہو، جانور خریدتے ہو، تو یہ مالی عبادت ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں آپ کا بدن بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے قربانی کا جانور لے کر آ گئے ہو، لیکن اسے آپ پالتے ہو، اس کے اوپر آپ خرچہ کرتے ہو، اس کو آپ چارہ کھلاتے ہو، اس کی آپ خدمت کرتے ہو، تو مالی عبادت کے ساتھ ساتھ یہ بدنی عبادت بھی ہے۔ اور پھر جب آپ چھری پھیرتے ہو تو چھری پھیرنے میں آپ کا جسم استعمال ہوتا ہے، آپ کا ہاتھ استعمال ہوتا ہے، آپ کا وجود استعمال ہوتا ہے۔ گویا کہ قربانی مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے۔ بلکہ جب آپ چھری پھیرتے ہو، مال آپ نے خرچ کیا، پیسے لگائے، مالی عبادت ہے، چھری پھیر رہے ہو، یہ بدنی عبادت بھی ہے، ساتھ ساتھ آپ کا دل بھی دکھ رہا ہے۔ وہ مینڈا، وہ گائے، وہ بیل آپ نے خوبصورت تلاش کی، پیسے دیے، اسے کھلایا پلایا، فربہ کیا، اسے آپ کو پیار ہو گیا، وہ آپ سے مانوس ہو گئی، وہ آپ کی آواز پہ اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے، چلتی ہے، پھرتی ہے، چرتی ہے، رکتی ہے، آپ نے اسے دل دیا، وہ بھی آپ کے دل میں گر کر گئی ہے۔ اب اللہ کے حکم سے آپ جب چھری پھیرتے ہو تو آپ کا کہ دل کو بھی ایک دکھ پہنچتا ہے، اللہ کی محبت کے لیے آپ اپنے دل کو یہ دکھاتے ہو تو دل دکھتا ہے، تو دل بدن کا ایک حصہ ہے، اس لیے قربانی بدنی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہماری شریعت میں جتنی عبادات ہیں وہ عبادات 3 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 بدنی عبادت جیسے نماز اور روزہ ہے۔ نمبر 2 مالی عبادت جیسے زکوٰۃ، عشر اور فطرانہ ہے۔ نمبر 3 وہ عبادت جو بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے جیسے حج اور قربانی۔ اللہ نے حج اور قربانی ان دونوں کو ذی الحج کے مہینے میں رکھا۔ قربانی بھی ذی الحج کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے اور حج کے ارکان بھی ذی الحج کے 5 دنوں میں ادا ہوتے ہیں، اور دونوں عبادتیں بدنی بھی ہیں اور مالی بھی ہیں۔ لیکن آج امت بدنی عبادت میں کوتاہی کر رہی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ پھر بھی بدنی عبادات بجا لاتی ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے، تو روزے ہم رکھ لیتے ہیں، نمازیں بھی
پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں پڑھتے، لیکن کچھ نہ کچھ پھر بھی اہتمام ہے۔ مالی عبادتوں میں زکوٰۃ بھی کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، لیکن وہ عبادات جو مالی بھی ہیں اور بدنی بھی ہیں، ان میں آج معاشرہ کوتاہی کا شکار ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں، وہ ہٹے کٹے ہیں، صحت بھی ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، جا کے وہاں پہ طواف بھی کر سکتے ہیں، سعی بھی کر سکتے ہیں، پیسہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، بدن بھی ہے، مال بھی ہے، حج فرض ہے، لیکن حج فرض نہیں ادا کر رہے، اس گناہ میں وہ گرفتار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کی استطاعت ہو وہ حج کر سکتا ہو، پھر حج نہیں کرتا، فرمایا چاہے تو وہ یہودی ہو کے مرے، چاہے تو وہ نصرانی اور عیسائی ہو کے مرے۔ آج مالداروں کو میں جانتا ہوں، پیسے ہیں، سب کچھ ہے، حج نہیں کر رہا ہے، اور یہی معاملہ قربانی کے ساتھ بھی ہے۔ قربانی فرض ہے، واجب ہے بہت ساروں پہ، پیسے ہیں، قربانی نہیں کر رہے، واجب قربانی کا اہتمام نہیں کر رہے، اور جو کرتے بھی ہیں تو پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کو کافی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے ایک حصہ ڈال دیا، یہ میرے بہو کا بھی ہو گیا، یہ میری گھر والی کا بھی ہو گیا، یہ میرے 4 بیٹوں کا بھی ہو گیا، سارے گھر کی طرف سے ایک حصہ ڈال دیا، اور خاتم طائی کی قبر کو لات مار دی۔ یہ کہہ رہا ہے میں بہت بڑا سخی آدمی ہوں، حالانکہ سنیے، قربانی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، یہ واجب ہے، گھر پر نہیں، فرد پر ہے۔ ہر وہ فرد، ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے، 52 تولے چاندی کی مالیت کے بقدر اس کے پاس مالیت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، مال تجارت ہے، ضرورت سے زائد سامان ہے، ان 5 چیزوں کو ملاؤ اور 52 تولے چاندی کی مالیت تک اس آدمی کے پاس رقم پہنچتی ہے، اس آدمی پر قربانی واجب ہے۔ اگر بیوی کے پاس اتنی رقم ہے تو بیوی پہ الگ فرض ہے، خاوند کے پاس اتنی مالیت ہے اس پہ الگ فرض ہے، 4 بیٹے ہیں، سب کے پاس اپنا اپنا کھاتا ہے، نفع نقصان الگ الگ ہے، اور ان کے پاس اتنی مالیت ہے، ان پہ الگ فرض ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے، تو امت آج اس عبادت میں بھی کوتاہی کر رہی ہے، کچھ کرتے نہیں ہیں، ادا کرتے نہیں ہیں، اور کچھ ادا کرتے ہیں لیکن مسئلے کو نہیں جانتے۔ 5 آدمیوں پہ واجب ہے، وہ ایک قربانی ادا کر رہے ہیں، اس لیے گناہگار ہو رہے ہیں۔ اسی آج کے جمعے میں قربانی کی ترغیب، قربانی کی فضیلت اور قربانی کی اہمیت آپ کو بتاؤں گا۔ ہمارا نبی بڑا کریم پیغمبر ہے، بڑا شفیق پیغمبر ہے، بڑا سخی پیغمبر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کے نفع اور فائدے کی چھوٹی چیز بھی اپنی امت کو بتائی ہے، اور بڑی سے بڑی چیز بھی بتائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے نفع کی ایک چیز تھی اور ہمارے پیغمبر نبی کریم نے وہ چھپا دی ہو، نہیں، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نفع کی چیزیں بھی ہمارے پیغمبر نے کھول کھول کے ہمیں بتائی ہیں، اور ہمارے نقصان والی چیزیں بھی ہمیں بتائی ہیں، یہ چیزیں تمہارے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ قربانی ایک عمل ہے، وہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور ہمارے نبی نے قربانی کے فائدے ہمیں نہ بتائے ہوں۔ نماز ایک عمل ہے، اس میں امت کا فائدہ ہے، تو نماز کے فائدے امت کو نہ بتائے ہوں۔ روزہ ایک عمل ہے، اس میں فائدے ہیں، تو حضور نے اس کے فائدے نہ بتائے ہوں، نہیں، بلکہ شریعت کا ہر وہ کام جس میں انسان کا فائدہ ہی فائدہ ہے، حضور نے اس کی مدلل تشریح اور وضاحت اپنی احادیث میں کی ہے، اور قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے مختلف عبادات کی طرف ترغیب بھی دی ہے، اور عبادات میں کوتاہی غفلت برتنے والوں کو ڈرایا بھی ہے، ترغیب بھی دی ہے۔ قرآن میں ڈر والی آیات بھی ہیں، شوق والی آیات بھی ہیں، ترغیب بھی ہے، ترغیب بھی ہے۔ احادیث میں وہ حدیثیں بھی ہیں جس سے عمل کا شوق بڑھتا ہے، اور وہ حدیثیں بھی ہیں جس میں بدعملی کے اوپر وعیدیں ہیں، سزائیں بیان ہوئی ہیں۔ تو قربانی ایک عمل ہے، اس میں نفع ہے، فائدہ ہے۔ ہمارے پاک پیغمبر
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फायदे बताए हैं, कुर्बानी के फवायद बताए हैं, इसकी अहमियत बताई है, इसकी फजीलत बताई है, इसका सवाब बताया है। और एक जुमला में कहना चाहता हूं मुसलमानों, कुदरत का ये कानून है, जो चीज इंसान के लिए जितनी ज्यादा फायदामंद है, जितनी ज्यादा नाफे है, जितनी ज्यादा नफा बख्श है, अल्लाह ने उन चीजों को आम कर दिया और उनका हासिल करना, अदा करना सहल कर दिया है। जो चीजें इंसान के लिए जितनी ज्यादा जरूरी भी हैं, नाफी भी हैं, नफा बख्श भी हैं, फायदामंद भी हैं, अहमियत वाली भी हैं, अल्लाह ने उसे आम कर दिया है। और आम करने के साथ साथ उसको हासिल करना सहल और आसान बना दिया है। मैं मिसाल देता हूं, मैं और आप जिंदा हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं। ये हवा हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अल्लाह ने आम कर दी है और इसका हासिल करना आसान कर दिया है। मैं और आप चाहते नहीं है, लेकिन सांस हम ले रहे हैं और सांस खारिज भी कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो खारिज कर रहे हैं। ये चीजें, ये सांस का ये जो निजाम है, ये कितना साल है, खुद बहुत हो रहा है और हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा। दूसरे नंबर पे देखिए पानी है। पानी भी इंसान के लिए अहम और जरूरी है। इंसान की बका पानी पर है, लेकिन हवा से कम है। हवा से अब इस पर कुछ ना कुछ खर्चा हो रहा है। आप बोर करते हो, कुआं खोदते हो, आप जो है ना पाइपलाइनें बिछाते हो, पैसा कुछ ना कुछ लग रहा है। जो चीजें इंसान के लिए ज्यादा जरूरी है वो अल्लाह ने आम भी कर दी है, मुफ्त भी कर दी है। और जो जरा कम जरूरी है उस पर जरा खर्चा भी है, जरा मुशक्कत भी है, उसको हासिल करने के लिए जरा मेहनत भागदौड़ भी है। पानी ले ले, खुराक को देखिए, गजा, खाने के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन पानी से ये कम दर्जे की जरूरी चीज है। और हवा उससे ज्यादा, इन दोनों से ज्यादा जरूरी है। अब खाने गजा के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, परदेश काटते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, गर्म सर्द हालात से हमारा वास्ता पड़ता है, मेहनत होती है नहीं, उसका हासिल करना मुश्किल है। फिर उसके बाद देखें फल फ्रूट है, वो कितना महंगा है, उसका हासिल करना ज्यादा मुश्किल। फिर उसके बाद जवाहरात को ले लें, कीमती पत्थरों को ले लें, सोने चांदी के जेवरात को ले लें, ये आसाइश के सामान को ले लें, ये लैंड क्रूजर, ये GLI और ये बड़ी गाड़ियों को ले लें, ये ज्यादा महंगी है। जिसकी जरूरत कम है वो महंगी भी कर दी और कम भी कर दी। जिस चीज की जरूरत ज्यादा है अल्लाह ने आम भी कर दी और उसका हासिल करना साल भी कर दिया और मुफ्त भी दे दी है। मुफ्त भी, जैसे इन मादियात में, इन जाहरी चीजों में अल्लाह का ये कानून है, वैसे ही मुसलमानों समझिए मेरी बात, दीन के बारे में, दीनी उलूम के बारे में, इल्म के बारे में, मारिफत के बारे में, अपनी पहचान के बारे में, अपनी रजा के बारे में, अल्लाह ने उस लाइन में भी ये ज़ाब्ता जारी किया है। जो इल्म इंसान के लिए ज्यादा अहम है, ज्यादा जरूरी है, वो दीन का इल्म है। अब जरूरी ज्यादा है हवा की तरह, और दुनियावी उलूम फनून भी जरूरी है, लेकिन इल्म दीन के मुकाबले में कम जरूरी है। अब देखिए, इल्म दीन को अल्लाह ने आम कर दिया है। हर मस्जिद के मुसल्ले पे खड़े होने वाला इमाम आपके बच्चों को कुरान पढ़ाएगा, मिलेगा आपको हर मोहल्ले में। तफसीर पढ़ाने के लिए आपको मुफस्सिर और मुहद्दिस में मिलेगा। आपके बच्चों को दीनी तालीम देने के लिए कम खर्च में, बल्कि मुफ्त में आपको चप्पे चप्पे पे मदारिस की ये खेप नजर आ रही है। दूसरी तरफ देखिए, दुनियावी उलूम फनून, उसकी अहमियत अपनी जगह पर है, लेकिन इल्म दीन के मुकाबले में कम है। इल्म दीन के मुकाबले में कम है। अल्लाह ने उसको जरा मुश्किल कर दिया। आप प्राइवेट स्कूलों में जाते हो, फी देते हो, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म खरीदते हो, कितने नखरे करते, एक बच्चे पे माहाना 15-20 हजार खर्च आ जाता है शुरू में। और इधर मदरसे में भेजा, 1 रुपया भी नहीं लगा, फॉर्म फिल किया, 1 रुपया नहीं है, चाय उल्टा मदरसे के मुहतमिम ने पिला दी, बच्चे को खाना मदरसा दे रहा है, पानी मदरसा दे रहा है, इलाज मुआवजा मदरसा कर रहा है,
कुदरत के इस खजाने को देखो, तकसीम को देखिए। जो चीज अहम है अल्लाह ने आम कर दी, आसान कर दी, और जो चीज गैर अहम है, ज्यादा जरूरी नहीं है, अल्लाह ने उसको हासिल करना भी मुश्किल जरा बना दिया और उस पर खर्चे भी लगा दिया। तो ये तमहीद मैंने इसलिए बांधी कि जितनी भी इबादत हैं इनके फायदे हैं, और उन फायदों को हासिल करना, उन इबादत को बजा लाना जरूरी भी है। जितना जरूरी है इतना अल्लाह ने उन्हें आसान बना दिया है। कुर्बानी वाजिब है साहिब इस्तिताअत पर, साहिब निसाब पर। कोई ये नहीं कह सकता कि जी मैं कुर्बानी करना चाहता हूं लेकिन मेरे लिए कुर्बानी करना मुश्किल है, पैसे हैं तो मुश्किल क्यों है? मुश्किल नहीं है। अल्लाह ने इबादत जो फर्ज की है उसकी अदायगी इंसान के बस में रखी है। ऐसा नहीं हो सकता अल्लाह ने शरीयत का एक हुक्म दिया हो और इंसान उसे बजा ना ला सके। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ने किसी इंसान को ऐसे चीज का मुकल्लफ नहीं बनाया जो उसकी इस्तिताअत और उसकी वुसअत में ना हो। तो कुर्बानी वाजिब है, आसान बनाई है अल्लाह ने, और इसके हासिल करने का, इसकी अजर, इसके फवायद, इसके मुनाफे हासिल करने वो अल्लाह के नबी ने हमें मुख्तलिफ अहादीस में खोल खोल के बताई हैं। कुर्बानी की फजीलत में आज इसलिए बयान कर रहा हूं, मसाइल इंशाअल्लाह अगले जुम्मों में होंगे ताकि आपको शौक पैदा हो जाए। क्या पैदा हो जाए? अल्लाह कुरानी करीम में जन्नत की नेमतें बयान करता है, जन्नत की हूरों का तस्करा करता है, जन्नत की नहरों का तस्करा करता है, जन्नत के फलों का तस्करा करता है, जन्नत की आसाइशों का तस्करा करता है, जन्नत की ज़िबाइशों का तस्करा करता है, जन्नत की नेमतों का तस्करा करके मेरा और आपका शौक बढ़ाना चाहते हैं कि नेकी पे हम आने वाले बन जाएं। इससे उलमा को ये ज़ाब्ता और उसूल मिल गया कि जब भी आपने उम्मत की रहनुमाई करनी है, किसी अमल की तरगीब देनी है, तो पहले उस अमल की फजीलतें बयान करो, अमल का सवाब बयान करो, अमल का अजर बयान करो कि इस अमल पे अल्लाह आपको क्या देगा। जब आप अजर बयान करेंगे, सवाब बयान करेंगे और आप उसके ऊपर इनाम बयान करेंगे, ये इंसान की फितरत है। जिस काम पे इससे कुछ मिलता है ये उससे फिर अदा करता है और उसके लिए बड़े से बड़े, कड़े से कड़े इम्तिहान, मुश्किल से मुश्किल जो है ना मराहिल को अबूर कर लेता है। जिस काम में इन्हें फायदा नजर नहीं आता ये उस काम को नहीं करते हैं। इसलिए अंबियाए किराम हकीम हुआ करते हैं, सूफियाए किराम हकीम होते हैं, उलमाए किराम हकीम होते हैं। वो उम्मत के नफ्स पे हाथ रखकर उनकी बदअमली की वजह मालूम करके उनका इलाज करते हैं कि उम्मत आज अमल पे क्यों नहीं आ रही। इन्हें अमल का शौक नहीं है। शौक क्यों नहीं है? इन्हें फजीलत का इस्तेहजार नहीं है, फजीलत का इल्म नहीं है। कुर्बानी एक अमल है, कुर्बानी एक अमल है। बहुत सारे मालदारों को हम देखते हैं छोटी छोटी बातों पे कुर्बानी छोड़ रहे होते हैं। बहुत सारे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? कुर्बानी की अहमियत नहीं है। अहमियत क्यों नहीं है? इनके सामने कुर्बानी पे मिलने वाला अजर और सवाब नहीं है। कुर्बानी अजीम इबादत है। क्या अजर अल्लाह जल्ल शानुहु इस पे अता फरमाते हैं। सुनिए, मैं एक हदीस और कुरान की एक आयत का सहारा लेकर इसकी फजीलत बताने लगा हूं। पहले मैं वो रिवायत पढ़ता हूं। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है, बुखारी में मौजूद है। फरमाया मा अमिला आदमीयुन मिन अमलिन यौमन नहरे, फरमाया यौमुन नहर, बड़ी ईद वाले दिन आदमी जो भी अमल करता है, किसी भी आदमी का कोई अमल भी अल्लाह के नजदीक कुर्बानी के जानवर के खून बहाने से ज्यादा अल्लाह को पसंदीदा नहीं है। तुम बड़े ताज्जुद गुजार, बड़े सदके खैरात वाले, बड़े इबादतें करने वाले, लेकिन बड़ी ईद वाले दिन, यौमुन नहर वाले दिन अल्लाह को सबसे ज्यादा जो अमल पसंद है, जिस अमल को अल्लाह बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, वो कुर्बानी का अमल है। कुर्बानी के जानवर का खून है, कुर्बानी के जानवर का खून बहाना है। बड़ी ईद वाले दिन तुम 1 करोड़ रुपए गरीबों पे खर्च कर रहे हो,
तुम 1000 जोड़े लेकर गरीबों पे बांट रहे हो, ये भी सवाब के काम है, लेकिन कुर्बानी नहीं कर रहे। तुम गुनाहगार हो, करोड़ों गरीबों के घर में राशन डालो बड़ी ईद वाले दिन, लेकिन दूसरी तरफ से आप जो कुर्बानी के जानवर पे छुरी फेर रहे हो और उसका खून बहा रहे हो, ये खून बहाना, ये 30-40 हजार रुपए जो आपने खर्च किए, इसका सवाब, ये अमल अल्लाह को तुम्हारे करोड़ों रुपए खर्च करने से ज्यादा पसंद है। मौके मौके की बात होती है, मौके मौके की बात होती है। किसी वक्त एक चीज अहमियत रखती है, किसी वक्त दूसरी चीज अहमियत रखती है। मिसाल, आज गर्मी के दिन है, इस पंखे की अहमियत का मुझे और आपको पता है। अब जिसकी हवा की कदर है, ये गर्मी में ये पंखे की अहमियत, इसकी कदर ज्यादा है। सर्दी के दिन आ जाए, आप एक बटन लगा लो, पंखे को चला लो, देखो सारी मस्जिद के मुख्तलिफ सलावातें सुनाएंगे, बुरा भला कहेंगे। गर्मियों में हीटर के फायदे हैं, सर्दियों में पंखे और कंडीशन के फायदे हैं। बड़ी ईद वाले दिन अल्लाह के यहां सबसे ज्यादा अहमियत वाला अमल, फजीलत वाला अमल, महबूब तरीन अमल जो अल्लाह के यहां है, वो कुर्बानी के जानवर का खून बहाना है। कितना महबूब है, अल्लाह अकबर कबीरा। बाब मोहब्बत का ज़ाब्ता बता रहा हूं, जिसे जिससे प्यार होता है उसे महबूब की हर चीज से प्यार होता है, महबूब की गली से भी प्यार होता है, महबूब के घर से भी प्यार होता है, महबूब की गली के कुत्ते से भी प्यार होता है। अल्लाह जल्ल शानुहु को कुर्बानी से इतना प्यार है, कुर्बानी अल्लाह को इतनी महबूब है, इतनी पसंदीदा है। कुर्बानी तुमने ज़बह कर ली, खून बह गया, तुमने गोश्त के टुकड़े कर दिए, गोश्त तुम्हारे घरों में आ चला गया, पीछे कुछ चीजें रह गई हैं। आपकी कुर्बानी के जानवर की सींगे आपने फेंक दी हैं, उसके पांव के खुर आपने उसके पाए निकाल कर खुर फेंक दिए हैं, आपने उसके जो है ना उस चमड़े के ऊपर जो बाल है वो आप नहीं खा रहे। लेकिन हदीस पाक में आता है अल्लाह को कुर्बानी इतनी पसंद है, इन्नहा लताती यौमल क़ियामा, कल क़यामत का जब ये दिन होगा, ये कुर्बानी आएगी किसके साथ? बिकुरूनिहा, अपनी सींगों के साथ, व अज़लाफ़िहा, अपनी खुरों के साथ। और फरमाया व इन्न दमा ला यक़अ मिनल्लाहि बिमकानिन क़ब्ल अन यक़अ मिनल अर्ज़, कुर्बानी के जानवर के खून का पहला कतरा जमीन पे अभी गिरता नहीं है, इससे पहले पहले अल्लाह के दरबार में शर्फ कबूलियत पा लेते, पहुंच जाता है। और अल्लाह के नबी ने आखिरी जुमले में मुझे और आपको शौक दिलाया, ओ मेरी उम्मत, जब कुर्बानी अल्लाह को इतनी पसंद है, इतना प्यार है कि खुर भी तुम्हारे फायदे में होंगे। क़यामत वाले दिन तुम्हारे मीजान में, तुम्हारे तराजू में तोले जाएंगे। फतीबू बिहा नफ्सा, ए मेरी उम्मत, इस कुर्बानी को खुशी से करो, खुशी खुशी से कुर्बानी किया करो, दिल छोटा मत करो, कंजूस मत बनो, मरियल और सड़ियल और ये हड्डियों के ढांचे, इस तरह की कुर्बानियां मत खरीदो। अल्लाह के दरबार में उम्दा चीज पहुंचाओ, अल्लाह के दरबार में उम्दा, खालिस और अच्छी कुर्बानी अल्लाह के दरबार में पेश करो। ये कुर्बानी की फजीलत, कुर्बानी की अहमियत मैंने आप हजरात के सामने बयान कर दी है। एक और रिवायत है, अल्लाह अकबर कबीरा, जिससे कुर्बानी का सवाब मालूम होता है, कुर्बानी की फजीलत मालूम होती है, कुर्बानी की अहमियत मालूम होती है। जरा तवज्जो दीजिए, बात तब समझ आएगी जब आप तवज्जो देंगे। एक लंबी हदीस है, लंबी हदीस है, जिसमें हुजूर के सहाबा ने हुजूर नबी करीम से पूछा, अल्लाह के नबी से, या रसूल अल्लाह मा हाज़िहिल अज़ाही, अल्लाह के नबी ये कुर्बानी की हकीकत क्या है? मा हाज़िहिल अज़ाही, ये कुर्बानी क्या चीज है, इसका फलसफा क्या है, हकीकत क्या है, ये कौन सी चीज है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमले में कुर्बानी की हकीकत भी बयान की, कुर्बानी की फजीलत भी बयान की, कुर्बानी की अहमियत भी बयान की। क्या फरमाया? क़ाला सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, सुनिए जुमले को। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे बाप इब्राहीम खलीलुल्लाह की सुन्नत है, तुम्हारे बाप इब्राहीम खलीलुल्लाह की सुन्नत है। साहबा कहने लगे अल्लाह के नबी, सुन्नत है इब्राहीम खलीलुल्लाह की, हमें इसमें क्या मिलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में तुम्हें नेकी मिलेगी,
हर बाल के बदले में तुम्हें नेकी मिलेगी। बकरी पे बाल होते हैं, हर बाल के बदले में नेकी। और कुरान करीम की दो आयात का सहारा लेके मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं। हर बाल के बदले में एक नेकी। कुरान करीम में अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया, मन जा बिल हसना फलहु अश्रु अमसालिहा, जो एक नेकी लेकर आता है वो एक नहीं होती 10 होती है। मसलुल लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसे है जैसे किसी ने एक दाने को जमीन में बोया, उससे एक खोशा निकला। मसलुल लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल, जिसने 7 खोशे निकाले, एक आपने दाना डाला, 7 खोशे निकले, और हर खोशे में 100 दाने हैं, 7 खोशों में 700 दाने हैं, तो एक नेकी पे कुरान की आयत से मालूम हो रहा है कम से कम सवाब 10 नेकियां है, ज्यादा से ज्यादा सवाब 700 गुना है। आगे अल्लाह फरमा रहे वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह इस कायदे का भी पाबंद नहीं है, जिसका इखलास ज्यादा है अल्लाह 700 से भी बढ़ा चढ़ा के दे सकते हैं। एक बाल के बदले में एक नेकी, एक 10 पे है या 700 पे है या इखलास के लिहाज से करोड़ों पे चली जाएगी। और एक जानवर पे कितने बाल हैं गिनते जाओ, तुम हिसाब किताब नहीं कर सकते, तुम्हारा अकाउंटेंट फेल हो जाएगा, कंप्यूटर जवाब दे देगा कि एक कुर्बानी पे अल्लाह जल्ल शानुहु इतना सवाब अता फरमाते हैं। कुर्बानी का कितना सवाब है, एक अजीब सवाब बताने लगा हूं, तवज्जो दरकार। ये बातें आपने सुनी है आपके शौक दिलाने के लिए। कुर्बानी पे अल्लाह क्या सवाब देते हैं। सहाबा ने सवाल किया, सहाबा हमारे मुहसिन हैं, सहाबा हमारे मुहसिन हैं, हमें दीन मुफ्त में मिला है, कदर नहीं है ना। जिस चीज पे आपका पैसा लगा हो, आपका वक्त लगा हो, उसकी कदर होती है। ये सवाल हजूर के सहाबा ने किए हैं। सहाबा सवाल न करते, कुर्बानी का सवाब न पूछते, कुर्बानी की हकीकत न पूछते, मुझे और आपको क्या पता होता कुर्बानी किसे कहते हैं, कुर्बानी की हकीकत क्या है, कुर्बानी का सवाब क्या है। ये दीन सदका है मेरे पैगंबर के, सहाबा का। सहाबा को दरमियान से निकाल दो, न कुर्बानी बचेगी, न नमाज बचेगी, न रोजा रहेगा, न ज़कात रहेगी, न रब का कुरान रहेगा। सहाबा वो पुल है जो उम्मत को नबूवत से मिलाते हैं, जो उम्मत को नबूवत से मिलाते हैं। दुश्मन की कोशिश होती है सबसे पहले मुल्क की पुलों को तोड़ दिया जाए, मुल्क की जो है ना उन शाहराहों को का रास्ता जो है ना काट दिया जाए, जो फौज के साथ कंटेक्ट में मुआविन साबित होती है। इसी तरह आज दुश्मन दीन सहाबा किराम पे हमला कर रहा है, सहाबा की गुस्ताखी कर रहा है। सहाबा मेरे और आपके मुहसिन हैं, सहाबा न होते ये कुर्बानी का सवाब मुझे और आपको मालूम ना होता। सहाबा ने सवाल किया मा हाज़िहिल अज़ाही, मा हाज़िहिल अज़ाही, ए अल्लाह के नबी ये कुर्बानी क्या है। हजूर ने एक जुमला इरशाद फरमाया, तवज्जो, सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। हजूर ने ये नहीं बताया कि इसमें कितने करोड़ सवाब मिलेगा, जन्नत में कौन सा महल मिलेगा, अल्लाह क्या देंगे। एक जुमला बता दिया, सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। सवाल है अल्लाह के नबी ने ये क्यों कहा तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है, बाप इब्राहिम की सुन्नत है, क्यों कहा, इब्राहिम को उम्मत का बाप क्यों करार दिया, फलसफा क्या है। तवज्जो समझिए, हमारी ये रिवायत है, ये हमारी गैरत होती है, हमें अपने बाप दादा अपने बड़ों के तौर तरीकों से प्यार है नहीं है। हम कहते हैं यार ये मेरे बाप दादा ये काम करते थे, ये उनका रस्म, ये उनकी रस्म थी, ये उनका रिवाज था, ये उनकी कल्चर थी, मैं अपने बाप दादा के कल्चर को तुम्हारी वजह से नहीं छोड़ सकता। अल्लाह के नबी ने हमारी नफ्सियात को समझा, फरमाया तुम कुर्बानी की हकीकत, कुर्बानी का सवाब जानते हो, छोड़ो बाकी बातें। फरमाया ये बात काफी है, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की रस्म है, तुम्हारे बाप इब्राहिम की, तुम्हारे बाप इब्राहिम का तरीका है, तुम्हारे बाप इब्राहिम की कल्चर का हिस्सा है। और बाप दादा के तौर तरीकों को वफादार बेटे जिंदा रखते हैं,
वफादार बेटों को बाप दादा के तौर तरीकों से भी प्यार है, बाप दादा के यारों से भी प्यार है, वो रिश्ते निभाते हैं, बाप दादा के किए हुए कामों को वो जिंदा रखते हैं। परसों मैंने एक साथी को देखा मस्जिद में, मुझे कह रहा है, हजरत मैं शरगढ़ मुंतकिल हो गया, शरगढ़ मुंतकिल हो गया। हमारी बड़ों की रिवायत है, हमारे बड़ों की ये रस्म है, हमारे बड़ों के से हमें ये नसीहत वसीयत है कि शाम को आस पड़ोस में वजीफा भेजा करो। वो कहने लगे मैं आया हूं, ये वजीफा मैं किसी को देख सकती हूं? एक साहिब का नाम लिया। मैंने कहा अल्लाह आपका भला करे, अच्छी बात है, आप अपने बड़ों के तरीके पे हो, सबका खैरात दिया करो, ये अच्छी चीज है। शाम को किसी गरीब के घर आपने भेज दिया, खा लिया, आपके बड़ों का सवाब मिलेगा। आज 14वीं सदी का मुसलमान अपने बाप दादा के रसूम और रिवाज, उनके तौर तरीकों से प्यार है। हजूर ने सहाबा से फरमाया, ओ सहाबा, ये कुर्बानी क्या है? ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की रस्म है, तुम्हारे बाप इब्राहिम की रस्म है। अगला सवाल होगा, इब्राहिम हमारे बाप कैसे हैं? जवाब यह है, हर नबी उम्मत का रूहानी बाप होता है, हर नबी उम्मत का रूहानी बाप होता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके क़यामत तक आने वाले हर कलमगो के रूहानी बाप हैं। कैसे बाप हैं? रूहानी बाप हैं। और हजूर का शजरा जाके हजरत इब्राहिम से मिलता है। हजूर हमारे रूहानी बाप हैं, तो इब्राहिम हमारे रूहानी दादा हैं। इससे हजूर ने फरमाया, ये तुम्हारे दादा, तुम्हारे बाप इब्राहिम का तरीका है, तुम्हारे लिए ये बात काफी है कि इस काम को मत छोड़ो, इस काम को। अब बाप का तरीका है, इब्राहिम का तरीका है, तवज्जो चाहता हूं, बात समझाने लगा हूं। इब्राहिम हमारे बाप हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह हमारे दादा हैं, कुर्बानी उसका तरीका है। सवाल खटक सकता है दिमाग में, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जो कुर्बानी की है, उसने भेल तो ज़बह नहीं किया, उसने मेंढे के ऊपर तो छुरी नहीं फेरी थी, उसने तो बेटे को ज़बह किया था। हमारे बाप दादा जो इब्राहिम खलीलुल्लाह हमारे बाप है, उसकी कुर्बानी तो बेटे की कुर्बानी थी। तो ये बैल, ये गाय, भैंस का ज़बह करना ये इब्राहिम का तरीका तो नहीं है। ये कैसे इब्राहिम की सुन्नत बन गई, इब्राहिम की रस्म बन गई, इब्राहिम का तरीका बन गया? जवाब सुनिए, समझोगे इस बात को, खुदा की कसम कुर्बानी का सवाब तुम्हें समझ आएगा। सुनिए, दो चीजें होती हैं, अल्लाह का ये कायदा है, इंसान जब पुख्ता तौर पे पक्का इरादा किसी नेकी के काम का कर लेता है और अपनी तरफ से नेकी का अज़्म मुसम्मम कर लेता है और वो काम न भी हो जाए, तो उस काम करने का सवाब उसे मुकम्मल मिलता है, पूरा सवाब मिलता है। आपने एक नेकी का इरादा किया, पक्का इरादा किया, फिर आप वो नेकी न कर सको, आपको उस नेकी का सवाब मुफ्त में मिल गया। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जो कुर्बानी की थी, आपका इरादा क्या था? आपका आज़्म मुसम्मम क्या था? अल्लाह के हुक्म से बेटे की गले पे छुरी फेर रहे हैं, इरादा पक्का है, इसका गला कटना चाहिए, गला कटना चाहिए, इस्माइल ज़बह होना चाहिए। कुदरत को मंजूर नहीं था, ज़बह नहीं हो रहा, ज़बह नहीं हो रहा। इब्राहिम का अमल बेटे को ज़बह करने का था, इब्राहिम का पक्का इरादा बेटे को ज़बह करने का था। तो इब्राहिम खलीलुल्लाह को जो सवाब उस बेटे के ज़बह करने के पुख्ता इरादे पे मिला है, ए मेरे मुसलमान, आपको बैल ज़बह करने का सवाब नहीं मिलेगा, आपको गाय ज़बह करने का सवाब नहीं मिलेगा, आपको दुम्बा और बकरी ज़बह करने का सवाब नहीं मिलेगा, आपको बेटा ज़बह करने का सवाब मिलेगा। हाँ, और मेरे बेटा आपके बेटे का सवाब नहीं, इब्राहिम के महबूब बेटे, इब्राहिम के प्यारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द आला में से आते हैं, आपके दादाओं में से आते हैं, उसके ज़बह करने का सवाब मिलेगा। कुर्बानी का क्या सवाब है? आपकी मेरी अकल के दिमाग के अंदर उसका पैमाना ही नहीं है, अंदाजा लगा ही नहीं सकते। जो सवाब अल्लाह जल्ल शानुहु ने इब्राहिम खलीलुल्लाह को इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़बह करने पे दिया है, वही सवाब, बिल्कुल उतना ही सवाब अल्लाह आपको और मुझे भी देगा जितना इब्राहिम खलीलुल्लाह को दिया है। कोई नादान कह सकता है, मौलाना साहब बात तूने बहुत बड़ी कर दी है,
हम गुनाहगार, हम सर से लेके पांव तक गुनाहों में डूबे हुए, हमारे हरकतें हमें पता है, हमारी कुर्बानी कैसी है। इब्राहिम ने बेटे को ज़बह किया, उसका इरादा बेटे का ज़बह करने का था। वो अल्लाह का खलील है, वो अल्लाह का महबूब है, उसको जो इनाम मिलेगा और हमें जो इनाम मिलेगा इसमें तो फर्क है। और वो कहता है, एतराज इसलिए पैदा हुआ, वो कहते हैं एक बादशाह है, एक वज़ीर आज़म साहब है, एक आर्मी चीफ साहब है, वो इनाम का ऐलान करता है, जो ये काम करेगा मैं उसे इनाम दूंगा, लेकिन वो सबको एक जैसा इनाम नहीं देता। वो सेनेटर को अलग किस्म का इनाम देगा, वो जो ना वज़रा को अलग देगा, वो आम MNA-MPO को अलग देगा, वो नीचे तबके के ऑफिसर कैडर को अलग देगा, और वो जो ना क्लर्क और खाकरोब और खुद्दाम को अलग इनाम देगा। सबको एक लाठी से नहीं आगता, बड़ों को बड़े इनाम मिलते हैं, दरमियानों को दरमियाने इनाम मिलते हैं, और नीचे लोगों को घटिया इनाम मिलते हैं। दुनिया के जो ना दरबार का ये ज़ाब्ता है, मुसलमानों तुम्हारे रब के दरबार का ये ज़ाब्ता नहीं है। कुर्बानी अल्लाह को इतनी महबूब है, जैसे इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह के मुकर्रब नबी हैं, बरगजीदा नबी हैं, उलुल अज़म नबी हैं। जो सवाब अल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह को देगा, जो सवाब कुर्बानी का अल्लाह अपने पाक पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह को देगा, वही सवाब मेरे मुसलमानों तुम्हें गाय ज़बह करने पर, भैंस ज़बह करने पर देगा, जर्रा बराबर कमी नहीं होगी। ये कुर्बानी का वो सवाब है। अगर समझ गए हो तो फिर तुम्हें फिर मुफ्ती साहब के पास जाकर अपने लिए कुर्बानी से जान छुड़ाने के रास्ते ढूंढने के लिए आप नहीं कहोगे हजरत साहब मेरे ऊपर वाजिब है या नहीं है। ये जो हम लोग तावीलें करते हैं, ये जो हम कुर्बानी वाजिब है उससे बचने के लिए कुछ हीले करते हैं, बल्कि आप में गरीब भी जब इस फजीलत को उसने सुन लिया है, वो भी कहेगा हाय मैं किसी तरीके से रुपया जोड़ू, किसी भी तरीके से, लेकिन कुर्बानी वाले इस अमल से और इस सवाब से मैं महरूम न रहूं। महरूम। अगली बात, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने बेटे इस्माइल को ज़बह करने का इरादा किया था। ये कुर्बानी ये बेटे के कायम मकाम है। किसके कायम मकाम है? बेटे के। और वो बेटा कैसा था? इब्राहिम के दिल का टुकड़ा था, बुढ़ापे में अल्लाह ने दिया था। इस्माइल अलैहिस्सलाम ये उसका बदल है, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम का बदल है। ये कुर्बानी मेरे और आपके बेटे का बदल नहीं है, ये इब्राहिम के प्यारे लख्ती जिगर इस्माइल का कायम मकाम है, उसका बदल है। तो जरा दिल से सोचो, आप जब मंडी में जाते हो, आप जब कुर्बानी लेते हो, तो खुदारा मैं हाथ जोड़ता हूं, कुर्बानी लो। ये कुर्बानी इस्माइल का कायम मकाम है। ऐसी कुर्बानी होनी चाहिए जो आपके दिल को अच्छी लग रही हो, जो आपको अच्छी लग रही, खूबसूरत हो और फरबा हो, और आपके दिल में घर कर जाए। और जब ईद वाले दिन तुम छुरी फेर रहे हो, तुम्हारे दिल की भी वही कैफियत हो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की छुरी फेरने के वक्त थी। अगर आपसे कहा जाए बेटे पे छुरी फेरो, तो बेटे से जितना प्यार है और आपके दिल की जो कैफियत बेटे के ज़बह करते वक्त होगी, ऐसा जानवर खरीदो उससे आपको इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी उनस हो जाए, आपको इतना अच्छा लगे कि कुर्बानी के जानवर पे छुरी फेर रहे हो अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए, और आपकी आंखों से उस जानवर की जुदाई में आंसू भी बह रहे हो। ये है दर हकीकत असल कुर्बानी। हमारे अकाबिर, हमारे बुजुर्ग जिनके हम नाम लेवा हैं, वो कुर्बानी 1 साल पहले लेते थे, अपने छोटे बच्चे जैसे पालते थे और उसे खुराक देते थे और उसे पालते थे, मानूस करते थे। और वो कुर्बानी का जानवर उनके साथ ऐसा मानूस हो जाता, जिधर वो जाते पीछे पीछे उनके जो है ना वो दुम्बा बकरी कुर्बानी के जानवर भी जाते, उनके इशारों को समझते। जब फिर ईद का दिन आता, शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह कुर्बानी के जानवर 1 साल पहले खरीदते, दुम्बे को ले लिया, दारुल देवबंद के मस्जिद हदीस पे हदीस पढ़ा रहे हैं, बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं, उनका ये दुम्बा दरवाजे में बैठा हुआ होता था, हजूर की हदीसें सुनता था। फिर जब घर जाते ये पीछे पीछे जाता, हजरत अपने हाथ से उन्हें चारा खिलाते, उसकी मालिश करते, उसमें तेल मलते, उसका जो है ना ख्याल करते थे। जब बड़ी ईद का दिन आता, कुर्बानी के जानवर को लिटाते, वो आंखों आंखों में शेख उल हिंद को देखता,
उस दुम्बे की आंखों में भी आंसू आते, शेउल हिंद छुरी फेरते और आंखों में आंसू आते, कहते अल्लाह ये नकल लेके आया हूं, इसे असल तू बना दे, इसमें मुझे वो अजर दे दे जो इब्राहिम खलीलुल्लाह को इस्माइल ज़बीहुल्लाह के ज़बा करने के इरादे पे मिला था। हाँ, कुर्बानी का ये सवाब है। जिसने ये सवाब समझ लिया और अब देख ले, जिन पे वाजिब है वो तो जरूर करें, जिन पे वाजिब नहीं है तो शादियों के लिए, अपने नाज नखरों के लिए हम कुछ ना कुछ करके वो और अपनी आरज़ुएं पूरी करते हैं। तो मैं कहता हूं जब वो करते हो ना, वाजिब में भी है, लेकिन मोहब्बत का तकाजा ये है, इश्क का तकाजा ये है, अल्लाह के नबी के साथ प्यार का तकाजा ये है, अल्लाह के साथ प्यार का तकाजा ये है, जैसे कैसे हो पैसे अरेंज करो, हर आदमी कम अज कम एक कुर्बानी करे। और जो साहिब इस्तिताअत हैं उनसे एक गुजारिश ये भी है, बहुत सारे लोगों को मसले का इल्म नहीं होता, वो बेचारे कर लेते हैं। एक चीज और का भी एहतमाम करें, पाक पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी जितने साहिब खैर हजरात हैं, एक हिस्सा उनकी तरफ से भी डालें। सवाब आप हजूर की तरफ इंसाल करना चाहते हैं, फायदा किसका होगा? आप हजूर का दिल खुश करेंगे, सवाब आप ही के खाते में आएगा। और क़यामत वाले दिन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा, आपके अहले बैत की शफाअत का जरिया ये अमल बन जाएगा। इंशाअल्लाह अगले जुम्मे को कुर्बानी के मसाइल और कुर्बानी के जो अहम अहम निकात हैं वो इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने बयान करेंगे। अहबाब से गुजारिश है, अहबाब वक्त पे आएँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।